Okay, class. So, welcome back to the next session. In this specific session, we will be discussing about transitional devices. Although you people must have an idea about transitional devices, they are the types of devices basically which are used in order to combine different sentences, not in like two combined sentences. For that combination, basically we use conjunctions, but transition devices are more specifically used in your paragraph writing. When you want to give unity or coherence to your paragraph writing, जब आप चाहते हैं कि आपकी paragraph writing एक continuity में हो, ठीक है, उनकी unity हो. For example, if you are discussing about the advantages of social media और advantages of morning walk, so बजाय इसके कि आप कहें कि जी social media helps us to communicate with our near and dear ones, social media helps us in our academic purpose as well, social media helps us in order to grow our businesses. So basically, we are basically not avoiding repetition. We are talking about social media again and again. बट अगर हम ये कहेंगे जी पहला फायदा सोशल मीडिया का ये है कि ये आपके नियर और डियर वंस के साथ इसको आप कनेक्ट करता है, ठीक है. दूसरा ये है कि आपके ये बिजनेस इसको ग्रो करता है. तीसरा ये है कि ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बेसिकली इन सारे डिवाइसेस को हम कहते हैं कि दे आर द एग्जांपल्स ऑफ योर ट्रांजिशनल डिवाइसेस एंड दे आर मोस्टली यूज्ड इन योर पैराग्राफ राइटिंग. So we have different types of transitional devices. In this specific session, we will be going through different types of transitional devices along with their usage. कि अगर एडिशन के ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं तो वो कौन कौन से हैं और उनका पर्पस क्या है, कहाँ हम उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है. सो आई हैव गैदर्ड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशनल डिवाइसेस फॉर यू पीपल which are considered to be important related to your exam point of view. So basically, the first one is addition. So all those types of the transitional devices, whenever we use them for making any addition in different types of sentences and paragraph form, ठीक है. और इन ट्रांजिशन डिवाइसेस की कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं? द फर्स्ट वन इज एडिशनली, द सेकंड वन इज मोर ओवर, द थर्ड वन इज फर्दर मोर, द फिफ्थ वन इज बिसाइड्स, ऑल्सो, इन एडिशन, नॉट ओनली दैट, वर्ड्स मोर. बेसिकली ये सारे जो टाइप्स ऑफ डिवाइसेस हैं ये आपके एडिशन के लिए यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, morning walk is good for health, full stop. Furthermore, comma, it also increases, it also basically boosts mental health. ठीक है. Second, besides the example energy, she is good, she likes writing, full stop. Besides, comma, she is also good at painting. सो बेसिकली ये जो सारे ट्रांजिशन डिवाइसेस हैं, जैसे आप मोर ओवर की एग्जांपल भी देख सकते हैं, शी लव्स पेंटिंग, फुल स्टॉप. मोर ओवर, शी एंजॉय स्कल्पटिंग. सो बेसिकली ये मोर ओवर आपको एडिशन के बारे में बता रहे हैं कि समवन इज देयर, शी लव्स पेंटिंग एंड व्हाट द डिफरेंट थिंग्स दैट शी डज बेसिकली. सो इन ट्रांजिशन डिवाइसेस को हम कहते हैं ट्रांजिशन डिवाइसेस ऑफ एडिशन, and they are very easy. By the way, you people must have an idea before this as well. So any examples from your side in sentence form in addition की कोई sentence, not only का कोई sentence, additionally का कोई sentence आप लोग की तरफ से? बस इसमें ना आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ये तो बहुत इजी है.
Okay, so 200 people died in flood. Furthermore, many buildings were destroyed. ठीक है जी, good. So the next one is of contrast. Basically, in contrast, we have two different things. You people can say that there are two sentences, and in those sentences, basically one sentence is playing the role, the positive role, and the other sentence is basically playing the negative role. These basically roles are opposite to each other. So basically, and these ideas are basically opposite to each other. So for that specific purpose, we use the transitional devices of contrast. For example, first one में you people can see that we have different examples, ठीक है, जिसमें आपका however, on the other hand, but, yet, in contrast, nevertheless, nonetheless, whereas, conversely, and still, they are basically used in order to show your contrast. For example, you people have an example as well. He is hardworking, however, he sometimes procrastinate. So basically, class, the first sentence is giving you the positive sense that someone is there, he is hardworking. However, लेकिन फिर भी, ठीक है, दिस फ्रॉम दिस हाउएवर बेसिकली एक नेगेटिव अपोजिंग आइडिया आपके पास स्टार्ट हो जाता है कि समटाइम्स वो लेजी हो जाता है, समटाइम्स वो काम करना छोड़ देता है, ठीक है, ही पुट्स ऑफ द थिंग्स बेसिकली. So this is how the transitional devices of contrast basically work. For example, he is an intelligent boy, full stop. On the other hand, comma, uh, his sister is not. So basically, we are defining someone, the worth of someone, that he is an intelligent boy. On the other hand, this is basically an opposing idea. ठीक है, जिसके लिए हम यूज करें, the parents were satisfied with my result, however they were expecting more. Shazza, is this something that is related to your daily life as well, or you are just making a sentence? Okay, I can understand. They are always expecting the best from our side. Okay, so a good sentence, by the way. The parents were satisfied with my result. ठीक है? This is something that is showing a positive aspect, or you can say the one aspect of the sentence. इसका जो contrasting idea है, या जिसे आप कह सकते हैं opposite idea है, वो ये है कि they were expecting more. So एक contrast show है ना, हम कहते हैं ना contrasting colors. One is light and one color is always dark. So इसी तरह आपके सेंटेंसेस में भी कंट्रास्ट बेसिकली पाया जाता है, उसके लिए हम बेसिकली ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ कंट्रास्ट यूज करते हैं. सो क्लास, एनी एग्जांपल फ्रॉम योर साइड ऑफ, अच्छा, नेवरदलेस एंड नॉनदलेस, क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं और अक्सर स्टूडेंट्स को इनके मीनिंग्स पता नहीं होते. नेवरदलेस का मतलब होता है लेकिन फिर भी, और नंदलेस का भी मतलब होता है लेकिन फिर भी. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ रेनी डे, फुल स्टॉप, नेवरदलेस, कॉमा, लेकिन फिर भी वी इंजॉयड पार्टी. ये कोई इतना मुश्किल वर्ड नहीं है या ट्रांजिशन डिवाइस नहीं है कि इसके आपको सेंटेंस मतलब इसमें बनाने में मुश्किल हो. नेवरदलेस का मतलब होता है लेकिन फिर भी. नंदलेस का भी मतलब यही होता है, ठीक है. बट एंड येट, sentences from your side of but and yet. He got first position in his class, yet he was not satisfied from his results. ठीक है, सो yet का मतलब होता है लेकिन फिर भी, ठीक है. So the first one is a positive aspect of a sentence. The second sentence is the negative aspect of the sentence. These sentences have basically contradictory ideas. ठीक है. So basically इन दोनों के दरमियान जो हम ट्रांजिशनल डिवाइस यूज करें, that is yet. I love reading but I could not manage time. ठीक है जी, गुड. ठीक है क्लास, यहाँ तक क्लियर हो गए हैं आप लोगों को. ये जो नेवरदलेस और नंदलेस के जो ट्रांजिशन डिवाइसेस मैंने मेंशन किए हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द यूसेज ऑफ these transitional devices. ठीक है. Cause and effect.
So basically, as the name itself is depicting that in a sentence, you people have a cause. There is a certain cause, and then it has an effect as well. And in between that specific cause and in between that specific effect, basically, we use the transitional device of cause and effect. एस एक ऐसा काम बेसिकली जो हम आपको आपको बेसिकली उस काम का रिजल्ट मिलता है, उस काम और रिजल्ट के दरमियान बेसिकली जो हम ट्रांजिशनल डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द फर्स्ट एग्जाम्पल्स आप लोग देख लें। देयर फॉर she was feeling she was unwell, full stop, therefore comma she did not come. So cause is that she was not feeling good, और उसका रिजल्ट क्या था कि वो नहीं ज्वाइन कर सकी। ठीक है। सो cause एंड इफेक्ट के दरमियान वी आर यूजिंग देयर फॉर, इसी वजह से आपको रिजल्ट दे रहे हैं या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। कंसिक्वेंटली, कंसिक्वेंस से निकला है, कंसिक्वेंस से ये वर्ड निकला है, कंसिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट। ठीक है। ही डिड नॉट वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम्स, फुल स्टॉप, कंसिक्वेंटली नतीजा ये आया हमारे पास, कॉमा ही फेल्ड। The cause is that he did not study well for the exams. Result is that के he got failed basically. So ये जो इस तरह के ट्रांजिशनल डिवाइसेस जिसमें आपको कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताया, अब इन कॉज एंड इफेक्ट में आप लोग बट की यूसेज नहीं कर सकते या नेवरदलेस की यूसेज नहीं कर सकते। मोर ओवर की यूसेज आप कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, शी फॉर गॉट हर अम्ब्रेला, मोर ओवर शी गॉट वेट। एडिशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये एज अ कॉज एंड इफेक्ट है, या ही did not study properly for his exams, full stop, moreover he failed। इस तरह के सेंटेंसेस आपके आएंगे, फिर आप लोगों ने डिसाइड करना है कि ये सेंटेंस में आपको एडिशन बताई जा रही है या आपको काज एंड इफेक्ट बताया जा रहा है। काज एंड इफेक्ट बताया जा रहा है, सो आप यू नीड टू चूज द ट्रांजिशन डिवाइस ऑफ काज एंड इफेक्ट। एडिशन बताई जा रही है, सो यू नीड टू चूज द ट्रांजिशन डिवाइस ऑफ एडिशन। ठीक है। सो क्लास, एनी एग्जाम्पल फ्रॉम योर साइड ऑफ बिकॉज, फॉर दिस रीजन, बिकॉज और फॉर दिस रीजन को जरा यूज करें सेंटेंसेस में। फजर, फजर व्हाई आर यू साइलेंट, व्हाई आर यू नॉट पार्टिसिपेटिंग? ओके, ओके, ओके। सो हिफ्सा एंड शाइजा, एनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर साइड? और कौन है हमारे पास? आयशा, व्हाई आर यू साइलेंट टुडे? शी हैज नॉट कम बिकॉज शी इज, ठीक है, गुड हिफ्सा। Since his father was a good lecturer, full stop, he has got good communicational skills. So we have a cause in this sentence कि because his father was a lecturer, reason और उसका कह सकते हैं रिजल्ट ही है आपके पास, इफेक्ट ये है कि he has got good communicational skills। ठीक है। he she studied throughout the year, full stop, for this reason, comma, she secured first position in her exams। So the cause is that she studied continuously, and effect हमारे पास ये है कि she got first position। So in order to combine both of these sentences, basically we are using for this reason। Got it? The next one is class comparison। So comparison के लिए भी हम transitional devices use करते हैं।
ठीक है, कौन कौन से ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। सिमिलरली, लाइक वाइज, in the same way, just as, equally, correspondingly. So basically ये जो likewise का ट्रांजिशनल डिवाइस है ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में आता है। likewise का मतलब होता है ऐसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कन्वर्सेशंस में किसी को कहते हैं, आप लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपने किसी को कहा हो जी कि नाइस टू मीट यू, यू लिसन द वर्ड और ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ likewise, वो आपको कहते हैं likewise। हम सोच में पड़ जाते इसने ये क्या बोल दिया लाइकवाइज। उस लाइकवाइज इज बेसिकली अ ट्रांजिशनल डिवाइस जो आपको बता रहे हैं कि मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, कंपैरिजन के अगर किसी दूसरे पर्सन को अच्छा लगा आपको भी अच्छा लगा। ठीक है, और लाइकवाइज का मतलब ये भी हो सकता है कि इस तरह, फॉर एग्जाम्पल, शी हैज गॉट गुड कुकिंग स्किल्स, फुल स्टॉप, लाइकवाइज, कॉमा, हर सिस्टर आल्सो, कि उसने उसके कुकिंग स्किल्स जो हैं वो अच्छे हैं, इसके साथ साथ उसके सिस्टर के भी अच्छे स्किल्स हैं। सो बेसिकली हम कंपेयर कर रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो हम ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो लाइक वाइज का भी यूज़ हो सकते हैं। सिमिलरली, फॉर एग्जांपल, शी ओबेज ऑल द ट्रैफिक रूल्स, फुल स्टॉप, सिमिलरली, कॉमा, शी इज़ आल्सो अ गुड स्टूडेंट। हम उनके क्वालिटीज़, किसी भी फीमेल क्रीचर या फीमेल स्टूडेंट के क्वालिटीज़ को बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ma'am, may I have minutes tea break listening but will remain? Okay, Shaiza, no problem. No problem. You may have. Thanks for letting me know. क्योंकि मुझे ऐसे लगता है फिर कि आप लोग, you people just, are sitting in front of the screen and doing other activities, and I'm just speaking over here, talking to myself. We used to do the same during, COVID-19. Teachers used to ask us the questions again and again, and we used to listen to them, but we were not like, we just took it as a fun कि मैम हमसे क्वेश्चंस पूछ रही हैं, आते भी थे लेकिन फिर भी हम नहीं बताते थे, हम एंजॉय करते थे। सो लाइक यू कैन से इस क्लास में आके मुझे वही टाइम मुझे बहुत याद आता है फिर। ठीक है, लेकिन आप एटलीस्ट इतना बता दिया करें कि आप लोग को समझ आ रही है और आप लोग, मैं नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करूं या नहीं। ठीक है, बिकॉज आई नो यू पीपल आर स्टडिंग थ्रू आउट द डे, सो आई कैन अंडरस्टैंड, बट लाइक लेट मी नो, प्लीज ट्राई टू लेट मी नो दैट यू पीपल आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, एंड इफ नॉट देन ठीक है। ओके, ओके क्लास। सो एम्फसिस, एम्फसिस का मतलब होता है लाइक व्हेन यू आर trying to prove the importance or significance of anything, any object, any person, any activity, अहमियत बताने के लिए, मतलब कि किसी पॉइंट को पर स्ट्रेस करने के लिए हम एम्फेसिस के ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज करते हैं। ठीक है, हम अपने डेली लाइफ में ये जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं ना वो बहुत यूज करते हैं, जैसे ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली मैं कल जाऊंगी कॉलेज। ठीक है, इसी तरह इंडीड, इंडीड और वेरीली के जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, बेशक इसका मतलब होता है ये इन इन द होली कुरान बहुत ज्यादा यूज्ड हुए हैं। इसमें हम कहेंगे कि जी इंडीड अल्लाह इज वन। ठीक है, एम्फेसिस, हम अहमियत बता रहे हैं कि ओके, और गॉड दैट इज अल्लाह, ही इज वन। ठीक है, या verily we have to taste the death, or verily after every hardship there is an ease। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली द रियलिटीज दैट वी कैन नॉट डिनाई। इन रियलिटीज की इंपॉर्टेंस बताने के लिए अगर हम ये सिंपल कहें ना कि जी देयर आफ्टर एवरी हार्डशिप देयर इज इन ईज, कि हर मुश्किल के बाद आपके पास आसानी है या आसानी आती है, सो दिस इज अ सेंटेंस वी आर गेटिंग इट। बट अगर मैं इस तरह कहूँ ना कि इंडीड, कॉमा, देयर इज एन ईज आफ्टर एवरी हार्डशिप, अब सेंटेंस थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, आपको मोटिवेशन भी मिल रही है। ठीक है, सो ये आपको अहमियत बताने के लिए या इम्पोर्टेंस बताने के लिए या सिग्निफिकेंस बताने के लिए ये ट्रांजिशन डिवाइसेस बेसिकली यूज्ड होते हैं। इनमें से कौन कौन से ट्रांजिशन डिवाइसेस हैं, इनफैक्ट हैं, ऑफ कोर्स हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि जी तैयारी आप पूरे साल पढ़ते रहें, तैयारी तो आपकी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, सो हम कभी कभार कह देते हैं जी, मानते तो नहीं है लेकिन हम कभी कभार कह देते हैं जी जी ऑफ कोर्स मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। सो ऑफ कोर्स मीन्स कि आप नेक्स्ट जो स्पीकर हैं आप उनकी उनकी बात को बेसिकली सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि ऑफ कोर्स माई प्रिपरेशन इज गुड।
ठीक है, above all. She is a good teacher, full stop, above all, comma, she is respected by her students. अब वो एक अच्छी टीचर है लेकिन उसके साथ साथ उसके स्टूडेंट्स जो है ना वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. अबव ऑल बेसिकली हम यहाँ एम्फेसिस या इम्पोर्टेंस बताने के लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है, ट्रूली. ट्रूली बेसिकली ये भी अगर रियलिटी के लिए हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, और आप लोग दिस इज अ रियलिटी यू पीपल कैन नॉट डिनाई, इसकी जगह आप लोग कह सकते हैं ट्रूली, कि मतलब ये सच है, आप सच बोल रही हैं, यस ये सच है. ठीक है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते. सर्टनली, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन डिवाइस. सर्टनली का मतलब होता है यकीनन. ठीक है, क्लियरली, विदाउट अ डाउट. सो बेसिकली ये सारे ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपके कहलाए जाते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस फॉर एम्फेसिस. ठीक है, और यू पीपल हैव एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू विच सेज दैट दिस इज इंडीड द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम. इंडीड का मतलब होता है कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है और वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आपके प्रॉब्लम के लिए. ठीक है, सो एक सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस बताने के लिए आप इंडीड की यूसेज कर रहे हैं. So I hope the usage of transitional devices of emphasis is basically clear. Okay. Okay, class. So let us move forward. क्लास आपके टेस्ट में बेसिकली ट्रांजिशनल डिवाइसेस से रिलेटेड एक ही एमसीक्यू आता है. बट लाइक व्हाई आई एम बेसिकली स्ट्रेसिंग ओवर द यूसेज ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस, कि आपको चार ट्रांजिशन सेंटेंसेस दिए होते हैं. उन चार सेंटेंसेस में आपका एक ही ट्रांजिशनल डिवाइस की यूसेज परफेक्टली हुई भी होती है. जब तक आपको ट्रांजिशन डिवाइस की यूसेज नहीं पता होगी आप उन क्वेश्चंस उन सेंटेंसेस में से नहीं देख पाएंगे कि इंडीड की यूसेज कहाँ परफेक्टली यूज हुई हुई है. अगर अब इंडीड की यूसेज आपको पता है कि इंडीड वहाँ यूज होता है जहाँ किसी भी बात को हमने स्ट्रेस 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 आउट करना होता है या इंपॉर्टेंस बतानी होती है या हाईलाइट करना होता है, तो फिर आपके लिए इंडीड का यूसेज वहाँ चूज करना विल बी इजी. लेकिन अगर आपको इंडीड की यूसेज ही नहीं पता, हमें अब आप लोग के सामने मैंने पीडीएफ ओपन किया होगा, आप लोगों ने तो यही सोचा होगा ओहो ट्रांजिशन डिवाइसेस ये तो हमें आते हैं. ठीक है, लेकिन इनकी यूसेज जो है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है कभी कभार. जैसे फर्दर मोर मोर ओवर की यूसेज हम डेली लाइफ में कर रहे होते हैं. हमें पता है कि दे आर यूज्ड फॉर एडिशंस, बट देन देयर आर लाइक सम सेंटेंसेस गिवन जो कि ऑपोजिट होते हैं एडिशन के, लेकिन वो फर्दर मोर और मोर ओवर की यूसेज कर रहे होते हैं. फिर आप लोगों ने देखना है कि फर्दर मोर कहीं अगर यूज हुआ हुआ है तो वो दो सेंटेंसेस आपको एडिशन का सेंस दे रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का सेंस दे रहे हैं, तो सेंटेंसेस लाइक फर्दर मोर की यूसेज ठीक होगी. अब फर्दर मोर की यूसेज आप कंट्रास्ट में नहीं कर सकते. हाउ एवर का आपको सेंटेंस गिवन हो सकता है और चार सेंटेंसेस हो सकते हैं जिसमें हाउ एवर की यूसेज में सिर्फ एक कंट्रास्ट की हो, बाकी सारे ऑपोजिट हो, किसी में कंपैरिजन हो, किसी में एम्फेसिस हो, किसी में एडिशन हो. तो जब तक आपको हाउ एवर की यूसेज नहीं पता होगी तब तक आप उसमें चूज नहीं कर सकेंगे कि हाउ एवर की यूसेज किस सेंटेंस में परफेक्टली की गई है. ठीक है, तो sentences making sentences out of these transitional devices are easy basically, but to know the usage of those transitional devices becomes somehow like complicated for students. ठीक है, सो आप लोगों ने यूसेज पर एम्फेसाइज करना है. ओके क्लास, द नेक्स्ट वन इज बेसिकली एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन. कि किसी भी चीज की अगर आप एग्जांपल्स देते हैं या उनके बेसिकली मेरिट्स को या डीमेरिट्स को, if you people are basically mentioning them. For example, I was discussing earlier about social media, that social media today today's era is all about social media, full stop. For example, it has many advantages. First of all, it connects you to your relatives. Secondly, it also helps you in growing your businesses. For instance,
comma, it gives you viewers in order to see your products that you design, etc. So बेसिकली जब आप किसी भी चीज़ की एग्जांपल्स देते हैं, ठीक है, उनके लिए हम ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। इसमें तो फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस के जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं वो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। हर उसमें एग्जांपल्स में अगर हम कहीं दे रहे हैं फॉर एग्जांपल की ट्रांजिशनल डिवाइस का ट्रांजिशनल डिवाइस हम मेंशन कर देते हैं। But there are some other transitional devices which are being used as examples or illustrations, जिसमें we have such as including, namely, specifically, to illustrate। ठीक है, टू इलस्ट्रेट का ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन डिवाइस है जिसका मीनिंग स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, और जब मीनिंग नहीं पता होता, इलस्ट्रेट का स्टूडेंट यही मतलब समझते हैं, इलस्ट्रेट का मतलब है दिखाना या किसी चीज़ को शो करना। वो इलस्ट्रेशन से ज़रूर निकला है, बट टू इलस्ट्रेट का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ की अगर एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, सो बेसिकली आप वहाँ इस ट्रांजिशन डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं जी हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ एग्जांपल और इलस्ट्रेशन? द फर्स्ट वन इज फॉर एग्जांपल, द सेकंड वन इज फॉर इंस्टेंस, सच एज, इंक्लूडिंग, नेमली, स्पेसिफिकली, टू इलस्ट्रेट। नेमली का ये वाला ट्रांजिशनल डिवाइस भी बहुत दफा आता है आपके टेस्ट वगैरह में। सो नेमली का मतलब, स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि नेमली मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट नेम्स ऑफ समथिंग, हालांकि दिस इज योर ट्रांजिशनल डिवाइस। नेमली का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक थ्री कलर्स, फुल स्टॉप, नेमली, कॉमा, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। नेमली का मतलब ये नहीं है कि उनके नेम्स ये हैं, नेमली मीन्स के दे आर द फॉलोइंग कलर्स दैट आई बेसिकली लाइक, फॉर एग्जाम्पल। और नेमली का एक ही मतलब है, नेमली का ये नहीं मतलब कि आप किसी चीज के नेम्स बता रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें जी, देयर आर मेनी फ्रूट्स टू चूज फ्रॉम सच एज एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस। ठीक है, आई हैव डिफरेंट हॉबीज टू डू, फुल स्टॉप, इंक्लूडिंग, कॉमा, राइटिंग, स्लीपिंग, कुकिंग एंड एंड पेंटिंग। सो उसमें आप इंक्लूडिंग की एग्जाम्पल, ठीक है, आई लाइक, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, फुल स्टॉप, specifically, comma, Hifsa is my best friend. I'm mentioning Hifsa just as an example. So I will be using specifically over there because I'm, talking and mentioning about the example that I have many friends, but she is my best friend. So specifically, if I'm saying that I am giving the example, I'm mentioning example. So I have used specifically over here. Okay, class. So I hope the usage of transitional devices of examples or illustrations is clear. Okay, class, the next one is sequence or time. So they are the transition devices which basically talk about sequence. For example, sequence में ये transition devices तो आप लोग बहुत use करते हैं, firstly, secondly, thirdly, fourthly, finally, subsequently। ठीक है, ये आप अपने जब किसी भी चीज के बारे में बता रहे होते हैं, ठीक है, एडवांटेजेस फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं, उसका फर्स्ट एडवांटेज ये है, सेकंड एडवांटेज ये है, ठीक है, थर्ड एडवांटेज इसका ये है। तो हम इस तरह के ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज करते हैं और ये बेसिकली आपके सीक्वेंस के लिए यूज होते हैं। टाइम के भी ट्रांजिशनल डिवाइसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपकी डेली लाइफ से आपको एग्जांपल देती हूँ कि जी, my mother was making food for me, full stop. Meanwhile, comma, I was getting ready for my academy, full stop. Meanwhile का मतलब होता है और साथ साथ। अब साथ साथ बेसिकली आपको स्पेसिफिकली, आयशा कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ?
ओके, थैंक यू। सो मीन वाइल इज स्पेसिफिकली आपको नहीं बता रही क्लास कोई टाइम कि 6 o'clock 7 o'clock, आपको सेंस जो है वो टाइम का दे रहा है कि साथ साथ मैं रेडी हो रहा था। ठीक है। बिफोर आई completed my work before they arrived, उनके आने से पहले मैं अपना काम कर चुकी थी, मुकम्मल कर चुकी थी। सो ये नहीं कि आपको स्पेसिफिकली टाइम गिवन हो। बेसिकली अगर कोई सेंटेंस आपको उनके आने से पहले, पहले मीन्स दिस सेंटेंस इज बेसिकली गिविंग यू द सेंस ऑफ टाइम। ठीक है। सो इसमें जो बिफोर है ये आपका ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ टाइम है। ये देन की यूसेज हम बहुत करते हैं। ठीक है। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फुल स्टॉप, देन कॉमा आई प्रेड, जल्दी जल्दी मैं सुबह उठी। ठीक है। और फिर मैंने नमाज पढ़ी, और फिर मैंने नमाज पढ़ी। ये नहीं कि सुबह सुबह मैंने नमाज पढ़ी, वो तो स्पेसिफिक टाइम हो जाएगा। फिर मतलब कि आप एक सीक्वेंस भी बता रहे हैं उसके बाद मैंने क्या किया। ठीक है। सो ये आपके पास ट्रांजिशनल डिवाइस ऑफ सीक्वेंस है। ठीक है। नेक्स्ट, आई डिड माई होमवर्क, फुल स्टॉप, नेक्स्ट, कॉमा, आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स। अब आप सीक्वेंस बता रहे हैं कि पहले आपने होमवर्क किया, देन आपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट किया। सो बेसिकली दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ सीक्वेंस एंड टाइम। आई होप दे आर क्लियर। क्लास लेट मी नो। नेक्स्ट वन इज कंक्लूजन। सो ये जो कंक्लूजन के हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम, खैर अभी तो आप लोग यू आर डन विद योर एग्जाम्स। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलवेज यूज कि मैम हम समरी राइटिंग कैसे करें, और समरी राइटिंग में हमने क्या लिखना है, और ऐसे के लास्ट पैराग्राफ में आप हम क्या लिखें। सो बेसिकली इन ऐसे के लास्ट पैराग्राफ में या समरी के जो लास्ट 2 to 3 लाइंस होते हैं वहाँ आप ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज करते हैं, जिसमें आपका इन कंक्लूजन, टू समराइज, इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, टू सम अप, फाइनली, ओवरऑल, इन समरी। ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस आप अगर किसी भी समरी को कंक्लूड करते हैं, किसी भी पैराग्राफ को कंक्लूड करते हैं, या आप किसी भी आंसर को कंक्लूड करते हैं, या आप अपने ऐसे राइटिंग को बेसिकली कंक्लूड करते हैं, तो चूंकि हमारा लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन का होता है तो उसमें हम ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जस्ट सपोज के यू आर टॉकिंग अबाउट एन ऐसे राइटिंग दैट इज रिलेटेड टू रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स। सो कंक्लूजन उसका ये हो सकता है कि इन कंक्लूजन all those who respect their parents are always getting success, or they are always successful in their life. So we get a short conclusion out of this whole essay basically। तो हम उसमें इन conclusion का transitional device use कर सकते हैं। ठीक है। to sum up, comma, all those who are working hard, they are always getting success। क्योंकि आप एक किसी भी ऐसे को बेसिकली कंक्लूड कर रहे हैं, या आप उसके बेसिकली समरी बता रहे हैं। सो बेसिकली यू विल बी यूजिंग ऑल दीज टाइप्स ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस, जिसमें यू पीपल कैन आल्सो सी द एग्जांपल इन अ सेंटेंस फॉर्म दैट आई हैव मेंशन्ड, व्हिच सेज दैट इन कंक्लूजन, comma, teamwork is essential for success। So basically, just suppose there is something, or you are writing summary, or you are having paragraph writing, you are writing and summing up your essay related to teamwork। सो आप लास्ट पैराग्राफ में ये सारे ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली एंड कंक्लूजन का ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप अपना एक जिसे कहते हैं ना थीमेटिक लाइन आप देते हैं। सो उसमें बेसिकली आप ये सारे ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ करते हैं। ठीक है। एंड दोज आर द ट्रांजिशनल डिवाइसेस विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन कंक्लूजन, टू समराइज, इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, टू सम अप, फाइनली। फाइनली का ट्रांजिशनल डिवाइस भी जो है आप कंक्लूजन के लिए यूज करते हैं, ओवरऑल। ठीक है। इन समरी, द नेक्स्ट transitional devices is transitional devices basically are used for clarification. Clarification means when you are trying to explain something more। ठीक है। when you are already have explained something but you are explaining it for the ease of other। ठीक है। कि आप चाहते हैं कि इस चीज़ की, या इस पॉइंट की, या इस सेंटेंस की समझ बेसिकली लोगों को ज़्यादा है, या यू वांट टू मेक योर पॉइंट मोर क्लैरिफाई, बेसिकली मेक इट क्लियर।
योर सेंटेंस इन एनी फॉर्म। सो बेसिकली उसके लिए जो हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं? इन अदर वर्ड्स, दैट इज टू पुट इट सिंपली, नेमली और स्पेसिफिकली। अब नेमली का आपका जो ट्रांजिशनल डिवाइस था वो आपके एग्जाम्पल्स के लिए भी यूज हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिस्कस की थी एग्जाम्पल के, like I like three colors, full stop, namely, comma, red, green and yellow. So basically आप एग्जाम्पल्स के तौर पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप देखें कि आप किसी को कहते हैं कि आई लाइक थ्री कलर्स, ठीक है, अब अगले बंदे को आप और एक्सप्लेन करके दे रहे हैं कि वो कलर्स कौन कौन से हैं, बेसिकली व्हाट आर दोज कलर्स, व्हाट आर द नेम्स ऑफ दोज कलर्स। सो यू आर यूजिंग द ट्रांजिशन डिवाइस ऑफ नेमली। ठीक है, नेमली मीन्स कि आप अपने उस सेंटेंस को या उस स्टेटमेंट को और क्लैरिफाई करें या और एक्सप्लेन करें। ठीक है, स्पेसिफिकली। ठीक है, देयर आर मेनी यू नो abilities or attributes in human beings that make them successful. Full stop, specifically, comma, hard work is one of them. ठीक है, कि देयर शुड बी लाइक attributes और abilities in human beings, लेकिन स्पेसिफिकली अगर कोई बंदा हार्ड वर्कर है सो वो हमेशा लाइक सक्सेसफुल होता है। सो आप अपने पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप अपने पॉइंट को और क्लैरिटी उसमें लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए हम ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज करते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स का सेंटेंस आप लोग के सामने। पॉलीगॉट मीन्स के एनी पर्सन लाइक, इन अदर वर्ड्स समवन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस। ठीक है, कि एनी पर्सन हु इज मल्टी लैंग्वेज मीन्स कि अगर कोई पर्सन लाइक ही और शी इज स्पीकिंग मोर देन टू लैंग्वेजेस और थ्री लैंग्वेजेस, ठीक है, सो उसको हम कहते हैं पॉलीग्लॉट। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स आपको क्लैरिफाई कर रहा है कि समवन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस। अब ऐसा बनो जिसको पॉलीग्लॉट का मतलब नहीं पता, ठीक है, हम तो आराम से बैठ जाएंगे कि यार इसका क्या मतलब है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया इन अदर वर्ड्स का ट्रांजिशनल डिवाइस यूज करके, समवन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस। ठीक है, सो आई होप क्लास दीज ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर क्लियर टू यू। वी हैव 1 minute left. We'll be sharing another link for 10 minutes, then we will be concluding it. यहाँ तक क्लियर है क्लास आप लोगों को? लेट मी नो। ओके ओके क्लास, मैं शेयर करती हूँ लिंक। ठीक है, 10 मिनट्स के लिए हम लेते हैं, फिर उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं आज की क्लास को।